था उसी को उसने यानी पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए यीशु पाप ठहरा ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिक। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि यीशु पाप ठहरा क्रूस में? मुझे हाथ दिखाओ अगर आप वचन को मानते हो। How many believe Jesus became sin on the cross? I hear Believe this. the word. As surely as Jesus became sin, तो जितना ये सच है कि यीशु पाप बना, as surely you have become the righteousness of God उतना ही in Christ Jesus. उतना ही ये भी निश्चित है कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो। अगर यीशु मेरे लिए पाप बना तो मैं उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं। If Jesus became sin for me, then for him I have become the righteousness of God. Amen. देखो बाइबल क्या कह रही है, अगर हमें सिद्धता की ओर जाना है हमें आदि शिक्षाओं से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। The Bible is saying if we want to go towards perfection, we have to grow out मैं of नहीं कह रहा है, elementary teachings. बाइबल कह रही है। I am not saying, the Bible is saying that. अगर जिंदगी भर ABCD सीखते रहोगे, अरे हम तो पापी हैं, प्रभु करुणा करेगा तो स्वर्ग चले जाएंगे, If you will keep learning ABCD all life long, oh we are sinners, if God has आपने mercy, उन we will. भेद की बातों को नहीं समझा कि क्रूस और पुनरुत्थान से क्या हुआ, कैसे आप एक नई सृष्टि बन गए। कितने सारे मसीह लोग हैं जिनको आज नहीं है पता कि नई सृष्टि होने का रियल मतलब क्या है। Then you will not understand the mystery of what a new creation is. So many believers don't even know what it even means. वो आज भी अपने कर्मों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर कर्मों से खुश नहीं होता, केवल विश्वास से होता है। Even today they are trying to please God with their works, and God is not pleased by works, he is only pleased by faith. Let's see Hebrews 6:1. इब्रानी 6:1. Therefore, leaving, say leaving. That means graduating, going to another class. Leaving the discussion of the elementary principles of Christ. इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की या प्राथमिक बातों को छोड़कर बाइबल क्या कह रही है? आरंभ की बातें आप छोड़ दो भैया। ABCD छोड़नी पड़ेगी अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखना है तो। The Bible is saying leave the elementary things if you want to learn the next thing. मैं कह रहा हूं ये आपकी बाइबल में लिखा Am I है। saying your Bible says it? आपकी बाइबल कह रही कि मसीह की आरंभ की आदि शिक्षाओं को छोड़कर क्या लिखा है? हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यानी सुनो, अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। The Bible is saying leave these primary elementary teachings to move towards perfection. If we do not leave these elementary teachings, we cannot go towards perfection. And what are these elementary teachings? First, repentance from dead works. क्या है ये प्राथमिक शिक्षाएं? पहली, मरे हुए कामों से मन फिराना। That's the first teaching. ये पहली शिक्षा है। And Bible is saying, hey, और बाइबल कह रही सुनो, you have to leave the elementary teachings to go on towards perfection. ये प्राथमिक शिक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी अगर सिद्ध होना है, आगे बढ़ना है तो। Otherwise, you will not be perfect in Christ. नहीं तो मसीह में सिद्ध नहीं हो सकते। आप बच्चे रहोगे जिंदगी भर, You will remain babes in Christ. tossed to and fro by every wind of doctrine. यहाँ वहाँ भटकते रहोगे हर एक आने वाली नई शिक्षा से। हाँ, कोविड आया, डुल रहे थे मसीह, आधे मसीह डुल गए, प्रभु ने भेजा है कोविड। COVID came, half the believers were on the side that God sent COVID. क्यों? क्योंकि Why? मसीह में अभी भी बालक है। Because they are babes in Christ. So कोई भी शिक्षा आती है, Any teaching comes, they go towards it. आधे से ज्यादा तो पश्चाताप कर रहे हैं उन पापों का भी जो उन्होंने करे ही नहीं कभी। More than half the people are repenting for sins they have never committed. आधे ज्यादा अपना बाप दादाओं के श्राप तोड़ रहे हैं। More than half are breaking the curses of their forefathers. आधे ज्यादा दुष्ट आत्माओं के पीछे भाग रहे हैं। Half of them are running behind. अरे demons. मसीह की शिक्षा कहाँ है? Where is the teaching of Christ? Where is the teaching of the Son of God? कहाँ That है? He is the exalted Savior, the victorious one. कहाँ है परमेश्वर के पुत्र की शिक्षा कि वो उद्धारक है जो सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया। अरे मैं देख रहा हूँ, अरे आपके परिवार के ऊपर अरे मृत्यु की आत्मा है। Oh, I'm seeing spirit of death over your family. Can I tell you something? सच बताऊं? मेरे परिवार के ऊपर मृत्यु की नहीं, जीवन की आत्मा है। The spirit of life is over my family, not the spirit of death. मगर ये आप तभी बोल्ड हो सकते हो, तभी हियाव आएगा जब सुसमाचार को समझोगे, वरना कोई भी एक भविष्यवाणी के नाम पे कुछ भी बोल के चल जाएगा आपको। But this boldness will only come to you when you will know the gospel. Otherwise, anyone will blabber anything to you in the name of prophecy, and you will take it. ओ
मैं देख रहा हूं बुधवार को घर से बाहर मत निकलना. Oh, I'm seeing don't go out of your house on Wednesday. Nonsense words are released in the name of prophecy, and babes swallow them because they have not developed their ability to test the word. फजूल की बातें भविष्यवाणी के नाम पर बोली जाती हैं और जो मसीह में बच्चे हैं उनको निगल लेते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अपने आप को परिपक्व नहीं एक किया. कपल को हम मिले, We met a couple. हस्बैंड सुसाइड ट्राई कर रहा था, वाइफ के साथ रिलेशनशिप इतना खराब है क्योंकि किसी भाई साहब ने भविष्यवाणी दे दी कि तेरी बीवी प्रभु की इच्छा नहीं, शादी हो रखी है. इसको बोलते हैं शैतान की तरफ से शब्द जो परिवारों को तोड़ देते हैं और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. The husband was suicidal and the relationship was not good. The marriage was not good because somebody came and prophesied your wife is not from God. This is called a word from the devil that is sent to destroy family. मगर सच बोल सकता हूं इस जगह में, इसमें गलती ऐसी है कि कई लोग शिक्षा को तुच्छ जान के भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं. The problem is many people despise solid teaching and they run after prophets. That's the problem. Today's Christianity has exalted the hand of a man of God more than the word of God. आज की मसीहत ने प्रभु के दास के हाथ को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है. ले हैंड कर दो, ले हैंड. अरे ले हैंड कर देंगे, पर जो चिल्ला चिल्ला के वचन बोल रहे हैं वो सुनो, उससे जीवन बदलेगा आपका. Oh, do lay hand on us. We will lay hand, but hear the word we are screaming and teaching. That will change your life. Your deliverance is in the word of God. आपका Your healing is in the word of God. Your breakthrough is in the word of God. Your promotion is in the word of God. आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है, आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है, आपका प्रमोशन परमेश्वर के वचन में है. Whatever you need from God is wrapped up in His word. जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है. परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अगर सिद्धता की ओर बढ़ना है तो आदि शिक्षाओं को छोड़कर ऊपर. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ना माने, मगर आगे. अब आप घर में आ चुके हो. The word of God says if you want to grow in perfection towards maturity, you have to leave the elementary teachings. Now you are in the house already. अगर पूरा रिश्ता आपका ओ प्रभु जी क्षमा कर दे, प्रभु माफ कर दे, प्रभु जी मैं पापी हूँ, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, प्रभु जी. If your entire relationship with God is Lord forgive me I'm a sinner, Lord forgive me I'm a sinner, तो फिर अभी सुसमाचार समझना है. सुनो शिक्षा को then you have to understand the gospel. जो Hear the आपको teaching. परिपक्वता की तरफ ले जाए. Hear the word that will lead you towards क्योंकि perfection. आज भी आपकी जो कॉन्शियंस है, आपका जो विवेक है, वो आपको दोषी ठहराता है. और आपका विवेक आपको इसलिए दोषी ठहराता है क्योंकि अभी भी आपका विश्वास अपने कर्मों में है और मसीह के लहू में नहीं है.